رانی ہمارے پرانے محلے کی ایک لڑکی تھی اور اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے مقابلے کی کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر محلے والے رانی کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے تھے جس پر یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رانی کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں کافی حد تک عجیب تھی۔ رانی کے کسی بھی انداز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، نہ آواز سے، نہ جسامت سے، نہ چال ڈال سے۔ پھر کیوں محلے کے کچھ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے؟ جہاں رانی کو آدھے محلے والے خواجہ سرا مانتے تھے، وہیں آدھے لوگ یہ بھی کہتے تھے شریف اور سادہ سی لڑکی ہے، بس ذرا سا رنگ روپ باقی لڑکیوں سے خوبصورت ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے خواجہ سرا سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا رنگ روپ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ مجھے نہ تو کبھی رانی سے ہمدردی تھی، نہ ہی محلے والوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی تھی، مگر دل میں ایک تجسس، ایک سسپینس سا تھا کہ یہ چکر کیا ہے۔ میں نے رانی کے گھر کے بہت سارے لوگوں سے پتہ کرانے کی کوشش کی، سب کا یہی جواب تھا کہ وہ لڑکی ہے، مگر محلے والے کس بنا پر یہ بات کر رہے تھے، اور اس بات کے جواب میں اکثر وہ یہ کہتے تھے اب گھر والے تو اپنی اولاد کے عیب چھپائیں گے نا۔ سچ تو یہ ہے رانی ایک خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی جس دائی نے ڈلیوری کی تھی، اس نے خود کی یہ بات بتائی تھی۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا تجسس ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ گتھی الجھتی چلی جا رہی تھی، آخر حقیقت کیا تھی؟ میں محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس سے دائی اور رانی کے حوالے سے چھیڑا۔ جواباً اس نے کہا تھا بیٹا ہم تو 40 سالوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں، رانی کی پیدائش بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی۔ اب سچ جھوٹ تو خدا ہی بہتر جانے۔ سچ جو بھی تھا، لیکن رانی اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جہاں وہاں جاتی نظر آتی تھی۔ مجھے اب اس پر تھوڑا ترس آنے لگا تھا۔ محلے والوں سے خدا پوچھے انہوں نے کس طرح ایک شریف لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے تو کوئی رانی سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ باتیں ہمارے محلے میں تو کیا، آس پاس کے 5 محلوں تک پھیل چکی تھی۔ تبھی رانی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار تو اس کی طے شدہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی منگنی اس کے کزن سے طے شدہ تھی، مگر محلے میں پھیلتی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اور بدنامی کے ڈر سے اس کے کزن نے رشتہ سے انکار کر دیا۔ اور ایک بار تو اس بیچارے کو شادی والی رات ہی لڑکے والے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لڑکے والے دوسرے محلے کے تھے اور لڑکی نے گلی میں آتے جاتے رانی کو پسند کر لیا تھا، اور لڑکے نے گلی میں آتے جاتے رانی کو پسند کر لیا تھا۔ بات شادی تک پہنچ گئی، اور شادی ہو بھی جاتی اگر لڑکے والوں نے نکاح سے 2 گھنٹے پہلے رانی کے بارے میں افواہیں نہ سن لی ہوتی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ رانی کے گھر والے ہر وقت پریشانی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ایک دن میں محلے کے پرانے گھر کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، دور سے رانی اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے سوچا تھا کسی سے پوچھنے کی بجائے ڈائریکٹ یہ بات رانی سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کافی کوششوں کے بعد بھی میں اس سے یہ بات نہیں پوچھ سکا، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو وہ اتنی خوبصورت آواز تھی جو کہ کسی لڑکی کی ہو سکتی تھی، مگر محلے والوں کی باتوں نے مجھے دونوں طرح سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کل شام کے وقت میں نے اپنے دوست زاہد سے رانی کا ذکر کیا تو اس نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر رانی لڑکی ہوئی تو میں تمہیں 1 لاکھ انعام دوں گا۔ اب خدا جانے سچ کیا تھا۔ میں ہر وقت رانی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، صبح سے شام تک، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے اگر ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن محلے والوں کی باتوں نے بھی دل میں ایک عجیب کراہت سی پیدا کر دی تھی۔ میں روزانہ رانی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھنے لگتا، وہ بھی کبھی کبھی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی،
लेकिन ज़्यादातर निगाहें नीचे करके चली जाती थी। मैं इसे देखते हुए सोचता, क्या वो लड़की है या ख्वाजा सिरा? लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। मोहल्ले के कुछ लोग कुछ और कहते थे और कुछ लोग कुछ और ही कहते थे। अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं रानी से शादी कर लूं। मैंने ये फैसला कर लिया, लेकिन मुझे ये डर भी था, अगर रानी शादी के बाद ख्वाजा सरा निकली तो क्या होगा। मैंने ये फैसला अपनी अब्बू को सुनाया तो वो नाराज़ होकर बोले, अस्तगफिरुल्लाह, अब तुम एक ख्वाजा सिरा से शादी करोगे? पूरा मोहल्ला जानता है कि वो लड़की नहीं है। अब्बू, अम्मी और ताया मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे, लेकिन मैं अपने फ़ैसले पर कायम रहा। मैंने कहा, अगर वो ख्वाजा सरा निकली तो इसे छोड़ दूंगा। लेकिन अब्बू ने हतमी लहजे में कहा, अगर तुम इस खुसरे से शादी करोगे तो हमारे घर मत आना। एक ख्वाजा सिरा को हम बहू नहीं बनाएंगे। अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने ये सुना तो सब हैरान हो गए। दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझ पर जुमले कसने लगे। कोई कहता, अब तुम्हारी दुल्हन ख्वाजा सरा होगी, तो कोई कहता, सुहाग रात पे बेचारे की क्या हालत होगी जब इसे पता चलेगा कि इसकी बीवी लड़की नहीं, एक ख्वाजा सिरा है। मैंने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। मेरे सब रिश्तेदार दौड़े चले आए। सब मुझे समझा रहे थे। मेरे भाई बहन मुझे समझाने चले आए। मेरे दूर दराज के रिश्तेदारों को जब पता चला तो सब मुझे समझाने आए। मेरे सारे घर वाले नाराज़ हो गए थे, लेकिन मेरा फैसला ख़त्म था कि मैं रानी के अलावा कहीं शादी नहीं करूँगा। सारे रिश्तेदार मुझे मलामत करते हुए चले गए और मेरे मोहल्लेदार अलग मुझसे मुलाकात कर रहे थे। कोई मुझे ये हंस रहा था तो कोई कह रहा था ये पागल हो गया है, लेकिन मैंने किसी की बात न सुनी। मैंने रिश्ते की बात रानी के वालिदैन के सामने की तो रानी के वालिद ने मुझसे कहा था, बेटा तुम जानते हो ना, रानी के बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें मशहूर हो चुकी हैं, इसके बावजूद तुम इससे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा, जी अंकल, ये सब जानने के बावजूद भी मैं रानी से शादी के लिए तैयार हूँ। इसके वालिदैन खुश हो गए, रानी भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं ये घुटन ज़रूर थी कि रानी की हकीकत क्या होगी। अगर वो सच में कोई ख्वाजा सिरा निकलाई तब क्या होगा। मैं इन सब ख्यालों को जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर सोचे थी कि बढ़ती चली जा रही थी। पहले मैंने सोचा था कि रानी के वालिद से कहूँ कि मैं शादी से पहले एक बार रानी को देखना चाहता हूँ, इससे कन्फर्म करना चाहता हूँ कि वो लड़की है या ख्वाजा सिरा। लेकिन ये बात कहना तो दूर, मुझे खुद से सोचते हुए भी शर्म आ रही थी। ऐसी बात मैं कैसे कह सकता था। ज़िंदगी अगर जुआ थी तो मैं जुआ खेल चुका था। अब जो होता देखा जाता। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहते कि तेरी बीवी ख्वाजा सिरा होगी, सुहाग रात पे बहुत पछताएगा। लेकिन मैंने किसी की बात न मानी। मैंने एक बहुत बड़ा घर किराए पे ले लिया था, जहाँ शादी के बाद मैं रानी को रख सकता। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरी खुद की जॉब थी। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब मेरी शादी रानी से हो गई। मैं अपनी शादी पे बहुत टेंशन में था कि जाने क्या होगा। सारी रात में सोचता रहा, अगर रानी ख्वाजा सरा निकली तो मेरा क्या होगा। मेरी शादी भी कोई नहीं आया था, ना मेरे दोस्त, ना रिश्तेदार और ना ही मेरे अपने घर वाले। सबको यही लगता था कि जैसे मैं शादी नहीं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी खुद की उलझन बढ़ती चली जा रही थी। शादी में जितनी देर रस्में चलती रही, मेरा दिल धड़कता रहा। मैं इंतज़ार कर रहा था सुहाग रात का, जब मुझे रानी के बारे में सच पता चलना। पता नहीं इस वक्त मेरी क्या हालत होती। मैं रानी को ब्याह कर अपने घर ले आया था और रानी को कमरे में बैठा दिया। रानी के साथ इसकी माँ और एक बहन भी आई थी, जो 2-3 घंटे बाद चली गई। अब रात हो चुकी थी। मुझे रानी के कमरे में जाना था, लेकिन मैं ये सोच कर डर रहा था, जाने क्या होगा। मैं कमरे में चला गया जहाँ मुझे रानी के साथ सुहाग रात मनानी थी, लेकिन मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने एक अजीब चीज़ देखी। वो दुल्हन के लिबास में नमाज़ पढ़ रही थी। मुझे ये चीज़ अच्छी तो लगी, लेकिन अजीब भी।
नमाज अदा करके वो घूंघट लेकर बेड पर बैठ गई। मेरी धड़कन तेज थी कि जाने क्या होगा। मुझे ये जानने की भी दिलचस्पी थी कि रानी के बारे में जो बातें मशहूर हैं इनमें कितनी सच्चाई है। मैंने इसके पास जाकर इसे सलाम किया। इसने बड़ी मोहब्बत से मेरी बात का जवाब दिया। मैं इसके पास बैठ गया और सोचा क्या बात करूं, कैसे करूं। फिर मैंने इससे पूछा कैसी हो तुम। इसने मुस्कुराते हुए कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मैंने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने इसका घूंघट उठाया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने इसका हाथ पकड़कर इसमें सोने की अंगूठी पहना दी। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब वक्त था वो करने का जो मैं कब से करने की ख्वाहिश कर रहा था। अब मेरे तजस्सुस का पैमाना लबरेज हो रहा था। फिर मैंने रानी के साथ सुहाग रात मनाई थी और इस वक्त मेरा दिल चाहा मैं किसी कौवे में छलांग लगा दूं और सारे मोहल्ले वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं, क्योंकि ना वो ख्वाजा सिरा थी और ना ही कोई खुसरा। वो एक आम सीधी सादी लड़की थी जैसे बाकी लड़कियां होती हैं। मेरे सारे वहम वागमान ख़त्म हो चुके थे। मुझे खुशी थी इस बात की, लेकिन साथ शर्मिंदगी भी थी कि मैं कैसे एक शरीफ और नेक लड़की पर शक कर रहा था। अब ये पछतावा और शर्मिंदगी मुझे सारी ज़िंदगी रहना थी। और मोहल्ले वालों का काम देखें, कैसे एक मासूम को बदनाम कर दिया था और कैसे इस बेचारी का जीना हराम कर दिया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि रानी को वो खुशियाँ दूंगा जिनके लिए वो तरसती रही थी। अगली सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी जब रानी मेरी बीवी थी। मैं रानी से शादी करके बहुत खुश था। अगले दिन मेरे सब दोस्तों और कुछ मोहल्लेदारों ने मुझे घेर लिया और पूछा कैसी रही एक ख्वाजा सिरा के साथ सुहाग रात। मैंने इन सब को लानत किया और कहा दिल करता है तुम सबको शूट कर दूं। कैसे एक मासूम लड़की को बदनाम कर दिया था। वो सब शर्मिंदा हो गए, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये बात अभी भी मौजूद थी कि रानी एक ख्वाजा सिरा है। लेकिन जब एक साल बाद मेरा और रानी का बेटा पैदा हुआ तब सबको यकीन आ गया और सब बुरी तरह शर्मिंदा हो गए। अब जब भी वो कभी मुझे देखते नज़र चुरा कर निकल जाते। अब तो मेरे घर वालों को भी सब पता चल गया और वो भी शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे और रानी को अपने घर ले गए। रानी के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। एक रात मैंने बातों बातों में रानी से पूछा रानी तुम्हारे बारे में ये ख्वाजा सिरा वाली बात कैसे मशहूर हो गई। तो रानी ने मुस्कुराते हुए बताया मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक कबीर नाम का लोफर लड़का भी था। वो कॉलेज से घर तक मेरा पीछा करता था और मुझसे बुराई के लिए उकसाता। लेकिन एक दिन मैंने इसे थप्पड़ मारा और बहुत सारे लोगों से इसे पटवाया। इसके बाद वो तो नज़र ना आया मुझे, लेकिन इसने मेरे बारे में ये सारी बातें मशहूर कर दी जिससे मैं बदनाम हो गई। मगर इस सब में भी मेरा फ़ायदा हुआ। अगर ये सब बातें मशहूर न होती तो मुझे आप जैसा शोहर कभी नहीं मिलता। मैं रानी की बात पर मुस्करा दिया। मुझे पूरा यकीन था अगर मैं किसी और से शादी करता तब कभी इतना खुश नहीं होता जितना रानी से शादी करके खुश था। हर चीज़ जैसी नज़र आती है या इसके बारे में हम जैसा सुनते हैं वो वैसा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।